Very good morning to all the students of class 10th. Welcome to your maths class. The running chapter is chapter number 3, LETV, linear equation in two variable. And in the yesterday video we have already started our exercise 3B and we have moved on up to question number 7. So today I will be starting my class from question number 8, which is saying that we have to solve these two equations by substitution method. And we have to find out the value of x and y. See, I have picked this question just because of the values here given with in the form of fractions, numerator as well as denominators form values are given with us. So we must have very consciousness with us so that we can get the proper and desired result. Before starting this, one very important thing, we have started this chapter. Today is third or fourth day, and I have already explained you with the help of video as well as with the help of your graphs, PDFs about graphical solution of linear equation in two variable. Since Monday, Tuesday and today is Wednesday, and 3 दिन हो गए हैं, अभी तक 10th क्लास की तरफ से कोई रिस्पांस मिला नहीं है whether they are doing this graphical solution of linear equation two variable or they are not doing. ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो, मैं ऑलरेडी आपको 10 से 12 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सॉल्यूशन बोर्ड पे बता दिया, समझा दिया और PDF भी प्रोवाइड कर दिया, बट स्टिल किसी ने अभी तक होमवर्क करके नहीं दिया है, किसी ने एक भी मैसेज मुझे ड्रॉप नहीं किया कि सर मैंने कर लिया है, या किसी ने ये भी नहीं बोला कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कोई दिक्कत है. सी इफ़ यू पीपल नॉट टेल मी दैट यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, देन हाउ कैन आई कम टू नो. सो मैं तो यही मान करके चलूँगा कि दैट यू पीपल आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स प्रॉपरली. उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज और था चैप्टर से रिलेटेड. वी आर इनटू द अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. अलजेब्रिक सॉल्यूशन हम लोगों के पास 3 तरीके के हो रहे थे: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. फॉर द सेशन ऑफ 2020-21 CBSE बोर्ड हैज रिमूव्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फ्रॉम द सिलेबस दिस टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ COVID-19. तो शॉर्ट टाइम हमारे पास हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ चैप्टर्स के कुछ पार्ट्स रिमूव किए गए हैं. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आई विल कीप इन्फॉर्मिंग यू दैट बेटा ये पार्ट इस बार रिमूव कर दिया गया है. जैसे इस चैप्टर में आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जामिनेशन में, सो वी डोंट हैव टू प्रैक्टिस दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ कमिंग बैक ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. द फर्स्ट इक्वेशन इज सेइंग x/3 plus y/4 equals to 11 and 5x/6 minus y/3 equals to -7. See, first of all, I am taking care of equation number 1. I am taking the LCM of LHS. 3 and 4, the LCM will be 12. 12 divided by 3, 4 times. 4 into x, 4x. Plus 12 divided by 4, 3 times. 3 into y, 3y. Equals to, this is 11. Now this will become 4x plus 3y equals to 11 into 12. This 12 will become in multiplication. Or we can say that 4x equals to, ये वैल्यू 132 और 3y को ट्रांसपोज करके मैं इधर ले जा रहा हूँ, दिस विल बिकम -3y. और वी कैन से दैट x equals to 132 minus 3y upon 4. देखिए, we have found the value of x in the form of y. अब जहाँ कहीं भी हमें आगे x मिलेगा, हम उस x की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे कि हमारे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें इजीली मिल सकती है. सो नाउ कम ऑन टू योर इक्वेशन नंबर 2. The same procedure we will opt here. The LCM is 6 and 3. The LCM is 6. So this will become 5x minus 6 divided by 3, 2 times. 2 into y, 2y.
equals to minus 7. So this will become 5x minus 2y equals to 6 into 7 minus 42. Now मैं इस x की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ. 5 in the bracket 132 minus 3y upon 4 minus 2y equals to minus 42. This will become 132 into 5, 660. 5 into minus 3, minus 15y upon, this is 4, minus 2y equals to minus 42. We can say here upon 1, so the LCM will be 4. This will become 4 divided by 4 one time. 1 into this complete term will remain same, 660 minus 15y. Then we are having minus sign, put it over here. 4 divided by 1, 4 times. 4 2s are 8y. Put 8y here, equals to minus 42. Now minus 15y and minus 8y, minus 23y equals to, ये 4 यहाँ जाकर के मल्टीप्लाई होगा, 4 2s are 8, 4 4s are 16 और नेगेटिव फॉर्म में. उसके साथ साथ ये 660 जो कि पॉजिटिव फॉर्म में है, इसको भी मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ. इट विल बी इन नेगेटिव नाउ. So we can say that it is minus 23y equals to, negative will be added. 8 plus 0, 8. 6 plus 6, 12, 2, carry over 1. 1 plus 1, 2 or 6, 8. Negative sign. Done. Therefore, we are supposed to find the value of y now. Y equals to minus 8 to 8 divided by minus 23. Minus 8 to 8 divided by minus 23. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. अब we are having y equals to 8 to 8 upon 23. 1 जा 23, 3 जा 69. 23, 3 जा 69. हमारे पास यहाँ से 13 बच गए. 13 और 8 यानी 138 बचा हुआ है. 23, 6 जा 138. Therefore our y equals to 36. Now put the value of y over here. अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है. y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट अप करेंगे. We will get the value of our x also. So x will be equals to 132 minus 3 into 36 upon 4. This will become x minus 132. Sorry, x equals to 132 minus 36 into 3, 108 upon 4. What is left with us? X equals to 32 minus 8, 24 upon 4. यानी x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई. This is the value of our 6 and this is the value of our y. So this was the solution of question number 8. We were having fraction के फॉर्म में क्वेश्चन था and we have gone through the solution by taking the LCM first in the equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 का LCM वगैरह लेकर के हमने एक तरफ x को अकेला छोड़ दिया और x की वैल्यू y की शक्ल में निकाल ली. फिर इक्वेशन नंबर 2 में भी सेम प्रोसीजर अपनाया. जब हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई तो हमने वहाँ पे x को हटा करके x की वैल्यू पुट अप कर दिया. अब जो कुछ भी अपने पास चल रहा है वो हर चीज़ y के ही शक्ल में है, कहीं भी x नहीं है. अब सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यूज़ ही हमारे साथ चल रही है और अल्टीमेटली वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू 36. अब y की वैल्यू जब हमारे पास आ गई तो वी हैव केप्ट द वैल्यू ऑफ y और हियर कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद मालूम चला द वैल्यू ऑफ आवर x इज 6. So students, once again you all are advised to perform these questions in your school copies. Very importantly,
और सबसे ज़रूरी चीज़ क्लास 10th के लिए स्पेशली, यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ रिपोर्ट करिए, बताइए, प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की जाए। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं, पता लग जाता है वीडियो देखा गया, लेकिन ना तो उसमें कोई काम आप कर रहे हैं, कभी कोई होमवर्क करके नहीं दिया जा रहा है, और न ही कुछ पूछा जा रहा है। ओके, तो प्लीज़ दिस थिंग शुड नॉट बी हैपन, क्योंकि आपका 10th का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, और ये सारी चीज़ें आपके पास एग्जामिनेशन में आने वाली हैं। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी से बचने के लिए प्लीज़ एफर्ट्स डालने शुरू कर दीजिए। चलिए, लेट अस गो अहेड। So we are moving towards our another question based on substitution method. The question number 14 we have. Solve the given LETV by substitution method and find the value of x and y. It is saying that 0.3 x plus 0.5 y equals to 0.5. This is your first equation. Second equation क्या कह रही है? 0.5x plus 0.7 y equals to 0.74. So we are supposed to find out the value of x and y. यहाँ पे डेसिमल की वैल्यूज को देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है। Now I am taking care of first equation initially. This is 0.3x can be written as 0.5 minus 0.5y. मैंने क्या करना शुरू किया है? मैंने x की वैल्यू को अकेला छोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे कि आगे चल करके मुझे x की वैल्यू y की शक्ल में मिल जाएगी, और उस x की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे कि हमारे पास y की वैल्यू एग्जैक्टली निकल के आ जाएगी। सो x विल बी इक्वल्स टू 0.5 माइनस 0.5 y अपॉन 0.3. So this is the value of x in the form of y. Now put value of x in equation number 2. This is the equation number 2. This is the equation number 2. I am going to put this value in place of our x. The equation is saying 0.5 x plus 0.7 y equals to 0.74. See, it is 0.5 in the bracket. 0.5 minus 0.5 y upon 0.3 plus 0.7 y. 0.7 y equals to 0.74. देखिए, यहाँ पे वन प्लेस का डेसिमल, यहाँ पे वन प्लेस का डेसिमल खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है? 5 है, यहाँ पे क्या है? 3 है। तो दिस विल बिकम, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये 5 इन सबके साथ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 5 ज़ा 25 और वन प्लेस का डेसिमल दैट मीन्स 2.5 माइनस 5 5 ज़ा, यहाँ पे डेसिमल था जिसको मैंने कट किया है। 5 5 ज़ा 25, 2.5 y अपॉन दिस इज 3 नाउ, इसका डेसिमल तो खत्म हो गया वन प्लेस का डेसिमल, प्लस 0.7 y इक्वल्स टू 0.74. नाउ वी आर गोइंग टू टेक एलसीएम, इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना? 3 होगा। 3 divided by this 3 equals to 1 time, and 1 into this complete term, it is 2.5
माइनस 2.5y, फिर प्लस का साइन लगा दिया। 3 डिवाइडेड बाय 1 3 टाइम्स, 3 इंटू 0.7, 7 3 जा 21, और 1 प्लेस का डेसिमल y इक्वल्स टू 0.74। ये हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू आ गई। नाउ वी आर हैविंग 2.5 माइनस में 2.5y और प्लस में 2.1y, तो बचा कौन? माइनस में 0.4y बच गया, इक्वल्स टू दिस 3 विल बी गेटिंग इनटू मल्टीप्लिकेशन विद 0.74। अब हम इस 2.5 को भी उस साइड पर लेकर के जा रहे हैं, इधर प्लस में है उधर माइनस में जाएगा, तो दिस विल बिकम 0.4y इक्वल्स टू, पहले तो ये देख लीजिए कि इनका प्रोडक्ट कितना है। 3 4 12, 2 कैरी ओवर 1, 3 7 21 प्लस 1 22, और 2 प्लेस का डेसिमल यहाँ पे माइनस में 2.5 आ रहा है, 2.5 माइनस में आया, तो माइनस 0.4y इक्वल्स टू 2.5 में से 2.22 को माइनस करेंगे तो 0.28 बच गया। सो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस किया गया तो नेगेटिव में बचा। Therefore our y will be equals to minus 0.28 on minus 0.4। चलिए भाई, अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 प्लेस का डेसिमल है, यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल खत्म हो जाएगा, लेकिन वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस विल बिकम y equals to 28 अपॉन 1 प्लेस का डेसिमल है, दिस विल बिकम 40। 4 से कट किया, 4 7 जा 4 10 जा 7 अपॉन 10 या फिर 0.7, हमारे पास हमारे y की वैल्यू आ रही है 0.7। So we have found the value of our y. Now we are supposed to find out the value of x. ये रहा x। अगर हम इस वैल्यू में y को हटा करके 0.7 रख दें तो हमारे पास हमारे x की वैल्यू आ सकती है। Now I am going to do this by rubbing this section. See, put value of y equals to 0.7. This is x equals to 0.5 minus 0.5 into 0.7, y की जगह पे 0.7 रखिएगा, upon 0.3. This will become 0.5 minus 5 7 35, और एक 2 प्लेस का डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल हो गया, अपॉन 0.3, तो x will be equals to 0.15 upon 0.3, so this will become x equals to 15 upon 30 या फिर 1 upon 2, x equals to 0.5 we can say. This is the value of our x and this is value of our y. So the question was not typical, 1% भी कठिन नहीं था। परेशानी हमारी क्या थी? परेशानी हमारी सर वो डेसिमल दिया हुआ था ना, उसको देख करके हम डर जाते हैं। ठीक है, डर इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। डरने की, दिमाग भटकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहिए तो डेसिमल के साथ हम लोग क्लास 3rd से खेलते चले आ रहे हैं। सो वी कैन डू डेसिमल क्वेश्चन, फ्रैक्शन क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चंस, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ इन सब चीज़ों को कॉपी में करना है, चाहे वो PDF हो, बोर्ड पे किया हुआ काम हो, चाहे वो होमवर्क हो। मुझे नहीं लगता कि 10th क्लास वाले रिस्पॉन्ड करेंगे,
बिकॉज बहुत मतलब समय गुजर रहा है, धीरे धीरे उनका 10th क्लास है और अभी तक में किसी ने कोई भी पीडीएफ का सोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं पूछा, ना बताया, ना कोई होमवर्क करके दिया गया। ओनली वन स्टूडेंट आई रिमेंबर, एक मेरे पास बच्चे का खाली रिस्पांस आया था, उसके अलावा जो है किसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स क्लास 10th, प्लीज़ बी अटेंटिव। अभी भी जाग जाइए, इन सारे क्वेश्चंस को कर डालिए। वी आर डूइंग 3rd चैप्टर, इट इज़ अबाउट टू एंड नाउ। तो फटाफट अपने शूज़ के लेसेस टाइट करिए, सारा का सारा काम फटाफट करिए, और अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है प्लीज़ ड्रॉप मी ए मैसेज। फ़ोटो खींच करके क्वेश्चन की मुझे भेजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, चीज़ें फिर से बताने समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आई नीड योर सपोर्ट इन द टर्म्स ऑफ यू हैव टू डू योर वर्क। सो प्लीज़ डू स्टार्ट योर वर्क इन योर स्कूल कॉपीज, practice more and more questions. By the time, very best of luck to all of you. See you tomorrow. Stay home and stay safe.